my dear student. How are you? I hope you fit and fine. Today we are study class 9 first chapter Ancient Civilization of the World. So we are now what is civilization? Mean of civilization and major civilization of the world and major civilization of the Rajasthan. Let's go start our chapter now. After long and development, the present civilization living has resulted from the time of birth of human type. Many civilizations have evolved and destroyed. The history of civilization, on the other hand, in the history of humanity. Therefore, to study about this developed ascent of civilization is necessary for the betterment of social life. India, from thousands of years, has been a rich civilized nation. Along with the India, Mesopotamia, Egypt, Chinese, Yunnan, etc. are some of the major Asian civilization. आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम रहा है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरफ से मानवता का ही इतिहास है, इसीलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। इट्स सम ऑफ वर्ल्ड मेजर एशियन सिविलाइजेशन। सम इंडिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, यूनान आर the major civilization of the world. Today only about and study about Indian civilization. First is सिंधु सरस्वती civilization. आज केवल हम बात करेंगे, हम अध्ययन करेंगे भारतीय सभ्यता के बारे में। इसमें हमारे फर्स्ट हैं सिंधु सरस्वती civilization. सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिंधु सरस्वती civilization. India is one of the Asian country of the world. Its history, its civilization and its culture are very ancient. According to archaeological evidence, archaeologists have determined that some 5,000-7,000 years ago, human groups had started building a permanent settlements for their living on the shores of the major rivers of India like Saraswati, Sindhu. It is very important. And tribes. And while living in these colonies, they had developed a better civilization and culture. What is civilization? This mean is, एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको कि civilization mean क्या होता है। तो 5,000-7,000 years ago, human groups had started building a permanent settlement for their living on the shores of the major river in India like Saraswati, Sindhu and their tribe, and while living in this colony, they have developed a better civilization and culture. सिविलाइजेशन का सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये लोग कहाँ से आए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक रहा है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर जो पुरातत्व विद्वान थे उन्होंने पता लगाया है कि आज से लगभग 5 से 7,000 वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदी जैसे सरस्वती, सिंधु व उसके सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना प्रारंभ किया और इन बस्तियों के रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता संस्कृति का विकास भी कर लिया था। अब मेन टॉपिक है कि हिंदू जो हमारी सिंधु सरस्वती रिवर्स है यह कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। तो फर्स्ट द इन दोस रिवर्स यानी कि सिंधु रिवर की बात करते हैं हम, तो ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेंग खबाब, सिरमुक एंड द ग्लेशियर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत। सिंधु नदी का जो उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेनेब खबाब, सेमुक व हिमनाथ से माना जाता है।
And Saraswati River originates from the Himalaya and enter in the region of Aribadri. It's flow in the southwest direction, crossing Kurukshetra, Gaggar, Hakra, and from Sirsa in Haryana, enter in Nohar in Rajasthan. From here, it flows to Bikaner and Jaisalmer and enter the Ran of Kutch in Gujarat, and finally merge in the Arab Sea near Prav Pathan. अगर हम बात करते हैं सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वह शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से ये आदिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, गग्गर, हाकड़ा होते हुए हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती हैं। यहाँ से बीकानेर, जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती हैं तथा प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती हैं। बट अगर बात करें प्रेजेंट टाइम, तो वर्तमान में सरस्वती जो नदी है उसकी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। यानी ऐसा माना जाता है कि आज जो सरस्वती नदी है वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। तो हमने पढ़ा कि सरस्वती और जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ और ये प्रारंभ कहाँ से होकर कहाँ तक फ्लो इसका होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, लेट द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच डेवलप most important, the human civilization which developed along the Indus and Saraswati rivers and tributes are now the Sindhu Saraswati civilization. It is very important. इसको आपको समझना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमें इसका नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों दिया गया। क्यों? क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी तथा उनकी जो सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित जो मानव सभ्यता जो हुई, यानी वहां पर जाके जो व्यक्ति रहने लगे, उन्हीं व्यक्तियों को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु और सरस्वती के किनारों पर बसने वाले व्यक्तियों और जिन्होंने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया, उन्हें हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। लेट्स गो एक्सप्रेशन ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि हमारी जो सिंधु सरस्वती का उत्खनन कहाँ से हुआ, यानी हमें कहाँ कैसे पता लगा। तो इन द ईयर 1921, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, एन आर्कियोलॉजिस्ट हु इज द मोंटी मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉर्मर पंजाब province of British India which is now is Pakistan। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे बने हुए एक पुरातत्व टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरफ से भारत के एक दूसरे पुरातत्ववादी व्यक्ति जो पुरातत्व राखाल दास बनर्जी सन 1922 में अविजित भारत के सिंध प्रांत के तरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्व किनारों पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। और उसी मोहनजोदड़ो का मीन क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मीन होता है माउंट ऑफ द डेड। फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज मीन ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो मीन इज माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट वो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की क्या क्या विशेषता रही। फर्स्ट इज प्लानिंग, यानी नगर नियोजन। द एक्सवेशन ऑफ द run showed a remarkable skill of the town planning। the town run of Harappa and Mohenjo-daro both of Pakistan, very important। क्यों? बिकॉज आज के टाइम में हड़प्पा और जो मोहनजोदारो हैं वो पाकिस्तान के हैं, कालीबंगा इन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा एंड धोलावीरा लोथल गुजरात आर द इम्पोर्टेंट ones from the run
It has also been depicted that the people of Sindhu Saraswati civilization planned before building the house. The cities and their house were well organized and of the level of civil engineering. ये इनके जो व्यक्तियों का नगर नियोजन जो था सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवसरों से हमें पता लगता है कि जो उस समय जो टाउन प्लानिंग थी, ऐसे बहुत सारे नगरों के अवशेष हमें मिलते हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, जो कि दोनों पाकिस्तान में है, कालीबंगा हमारे राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा तथा धोलावीरा लोथल गुजरात के आदि इनसे बहुत सारे हमें इन नगर नियोजन के बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उनसे हम बता सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भारतवर्ष अपने पहले योजना बनाकर अपनी नगरों की निर्माण करवाते थे, यानी कि वही प्लानिंग जैसे आज हम हमारे घर बनाने के लिए इंजीनियर से बात करते तो उसी अकॉर्डिंग से बना या करते थे। इसमें फर्स्ट आता है हमारे कि ये हाउसिंग प्लानिंग कैसे करते थे, नगर नियोजन कैसे करते थे। द हाउस ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वर अ डिफरेंट साइज, यानी स्थिति का घर की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के अलग अलग प्रकार से ये अपने घर बनाते थे और अलग अलग भागों में उसको बांटते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें प्रणाली का परिणाम स्वरूप स्थल नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई और नगर कई खंडों में मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर के आए थे। यानी कि हम बात करें अगर उस समय के नगर आवासों की तो वही डेवलप जैसे आज हम बनाते हैं वैसे ही वो नगर डेवलप करते थे। नेक्स्ट है रोड सिस्टम। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इनकी रोडों की बात करते हैं तो लगभग वैसे ही रोड पाए जाते हैं जैसे आज हमारे पाए जाते हैं। इनकी नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें होती थी जो कि बता दें 10 मीटर और छोटी जो सड़कें होती थी वो 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। यानी मेन बाजार की बात करते हैं तो 10 मीटर का रोड होता था, छोटी सड़कों की बात करते 5 मीटर और गलियों की बात या मोहल्लों की बात करते थे 1 से 2 मीटर की सड़कें पाई जाती थी। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डस्टबिन वर आल्सो केप्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रास्तों पर सड़कों पर किनारों पर हमेशा कूड़ादान का प्रयोग किया जाता था और रखे हुए होते थे। तो उस टाइम भी जो सफाई का अभियान जो था सबसे इम्पोर्टेंट रखा इन लोगों ने। नेक्स्ट इज टॉपिक इज टाउन्स क्लीननेस एंड ड्रेगिंग सिस्टम, यानी नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध ये लोग कैसे थे, जैसे नालियां बनाना वगैरह। द टाउन्स एंड द हाउसिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड मेजर्स ऑफ क्लीननेस एंड आल्सो बीन। इसमें पाया गया है कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता संबंधित नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। एविडेंस इनमें पाए गए हैं कि ड्रेगिंग सिस्टम आर आल्सो फॉर एविडेंस, यानी कि पानी की निकासी के लिए यह गलियों और सड़कों मुख्य सड़कों पर बनी नालियों का प्रयोग करते थे जिससे कि पानी उनका निकल सकता था। नेक्स्ट इज स्पेशल फीचर्स, यानी कि इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं, इनकी विशेष और भी क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। वेल एक्सकेवेटिंग द सेटल माउंट ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन many uncovered buildings were found. Some of those are safety wall place and melting of metals. सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातत्व खुदाई से विशेष प्रकार के निर्मित भवन और इमारतें और भी बहुत सारी चीजें इसके अलावा मिलती है। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ, इनके बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की सोशल लाइफ, इनका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो from looking at the sketches and the object which are so we are also able to learn about the people who lived and worked in their cities and along. हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की तो सिंधु सरस्वती सभ्यता संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई से मिलता है जिनसे हमें पता लगता है कि उस काल के समाज के कई प्रकार के कामधेय करने वाले लोग मिलकर बना था। व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुरूप विभिन्न कार्य करते थे समाज में तथा धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उत्पादन प्रमुख थे। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग, उस समय भी फैमिली प्लानिंग, आज भी जैसे हम फैमिली प्लानिंग करते हैं ये भी करते थे। द बिल्डिंग एंड हाउस ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पीरियड
clearly depicts that their men's union was their family. यानी कि परिवार की बात करते तो सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में भवनों मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके सामाजिक प्रमुख इकाई परिवार था। तब बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्ति मिलने से पता लगता है कि उस समय जो थी पर्दा प्रथा भी नहीं थी, और उसमें साथ साथ में ही पता लगता है कि उस समय जो महिलाओं की स्थिति वो सम्मानजनक रही थी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लाइफ। ये इनकी जो आर्थिक जो जीवन था वह कैसा था। ये लोग डिपेंड करते थे टू टाइप्स के करते थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट था कृषि और पशुपालन। जो आर्थिक इकोनॉमिक्स बात करते हैं इनकी जीविका चलाने के लिए क्या कार्य करते थे, खर्चा पैसा कमाने के लिए क्या कार्य करते थे। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर जो कृषि थी उसमें ये नॉर्मल से बात है, पाए गए हैं सबूत है कि प्लग्ड जो फील्ड्स है वो मिले तथा उनसे पता लगा कालीबंगा के कुछ क्षेत्रों में विच क्लियरली डिपेक्ट्स, वो हमें बताते हैं कि पहले जो व्यक्ति थे वह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे। तथा साथ साथ में इसमें कुछ पेंटिंगें भी बताई गई जिनसे हमें पता लगता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो व्यक्ति थे वह कृषि करते थे। तथा साथ में वो लोग गेहूँ जौ चावल तेल आदि तथा साथ में यह पशुपालन का कार्य भी करते थे। और इनके जो सबसे प्रमुख जो cows was the main among domesticated animal। तो बात करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो यह हमेशा काऊ को यानी कि गाय इनका घरेलू जानवर होता था। नेक्स्ट ही ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। अगर बात करते हैं तो इसके साथ साथ ये है कृषि और पशुपालन के अलावा भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कि व्यापार भी करते थे। यहाँ के निवासी तांबे के कांसे के बर्तन व औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में निपुण थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये व्यक्ति अपना कार्य करते थे और भी कार्य करते थे। नेक्स्ट है रिलीजियस लाइफ, यानी कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की, तो फ्रॉम the village of Indus Valley we get some idea about the religious life of the time. They used the worship environment energies and worship the earth, people name water sun fire etc. and goddess Shaktis discovered of figures status are found। अगर बात करते हैं धार्मिक जीवन की, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे और वह पृथ्वी पीपल नीम जल सूर्य आदि की पूजा करते थे। आई होप अभी तक आपको जितना ही पढ़ाया गया वह अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट एंड फाइनल इन इंडियन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि इस जो सभ्यता थी इसकी समाप्ति कैसे हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि दिस सिविलाइजेशन इज सेड टू बी हैव कम टू बी एन एंड, यानी कि सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ। यही वहीं उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन से भी खंडर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। On the whole, the Sindhu Saraswati civilization of the Indus Valley civilization played an important part and is at utmost important। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आई होप टुडे आज जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे समझ में होगा। इसके नेक्स्ट जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आप सब माय डियर स्टूडेंट स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू।